Okay, guys. Today we'll be discussing the circulatory system ka paper, and I want everyone to keep their answer paper in front so that आप लोग भी cross check कर सको. Now, first question that I've given in the test paper was in the following: the blood vessel that brings blood from the body part. Now here, I'm expecting a very simple answer from all of you, and that is Vein. yes, vein. Okay, there is no need to write down superior or inferior vena cava because it is written blood vessel that brings blood from body parts. So when it is written from body parts, you don't have to write down superior or inferior vena cava. Superior और inferior vena cava सारे body parts में से blood इकट्ठा नहीं करते. सारे body parts में से blood collect कौन करते हैं? Veins. And ये सारे veins कहाँ पे open up होते हैं? Superior और inferior vena cava में. Okay. The process of by which the WBCs engulf the bacteria. Phagocytosis. Exactly, phagocytosis. No mistake in spelling is what I expect over here. The site of production of RBCs in the human embryo. Now here, bachalo, you can write down either spleen or liver. Okay, दोनों में से आंसर आपका एक्सेप्ट किया जाएगा. दोनों में से कोई एक आपका आंसर राइट गिना जाएगा. Okay, so please make sure स्प्लिन और लिवर बोथ द आंसर्स आर करेक्ट. तो अगर किसी को आंसर करेक्ट नहीं भी दिया है, मैं आपको बता रही हूँ इट इज करेक्ट. क्लियर? ओके. एनालॉगी टाइप ऑफ क्वेश्चन आई हैव आस्क्ड. वेन सुपरफिशियल. अभी अगर आप देखोगे तो सुपरफिशियल जो है वो उसके पोजीशन पे डिस्कस कर रहा है, पोजीशन बता रहा है. तो वेन अगर सुपरफिशियल में है तो आर्टरीज कब कहाँ पे प्रेजेंट? डीप सीटेड. आप डीपर लिख सकते हो या फिर डीपली सीटेड भी लिख सकते हो. इट इज वन इन द सेम एंड बोथ द आंसर्स आर एक्सेप्टेड. ओके, आप डीपर भी लिख सकते हो, आप डीपली सीटेड भी लिख सकते हो. ऑरिकल्स आर रिसीविंग चेंबर, वेंट्रिकल्स आर Distributing chambers. yes, these are distributing chamber. Correct. Okay, so I think ये तो काफी easy था. Now coming to exact location and function. बच्चे यहीं पर ही marks बहुत ज़्यादा गवाते हैं. Exact location of chordate tendon है. I am going to give you the answer. You please listen to me. यहाँ पे जगह नहीं तो मैं लिख नहीं पाऊंगी. These are tendinous cords. Okay, these are tendinous cords arising from the muscular projections of ventricular walls called papillary muscles. I repeat, these are tendinous cords arising from the muscular projection of the ventricular wall, muscular projection of the ventricular wall called papillary muscles. Clear हुआ answer? Clear हुआ answer? Yes, miss. Yes, ma'am. Why you are not discussing your answer? You can discuss with me your Miss, answer. we can write tip of the papillary muscles. Sorry, we can what? Tip of papillary muscles. टिप ऑफ पैपिलरी मसल्स मतलब वही बात हो गई ना कि मतलब दीज आर अराइजिंग फ्रॉम द पैपिलरी मसल्स. तो टिप लिखने से अच्छा अराइजिंग लिख दो, वो बेटर होगा. Okay, ma'am. कोरोनरी आर्टरीज. two arteries arising from the base of the aorta. Arising from base of the aorta. Two arteries. Yes, you have to mention the number of arteries. अगर आप आर्टरीज का नंबर मेंशन नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा. टू आर्टरीज अराइजिंग फ्रॉम बेस ऑफ द एओर्टा. ओके, क्योंकि दो ही आर्टरी अराइज होते हैं, एक जो लेफ्ट वॉल में जाता है और दूसरा जो राइट वॉल में जाता है. ठीक है. नेक्स्ट इज मिट्रल वाल्व. मिट्रल वाल्व इज आल्सो कॉल्ड एज Bicuspid valve. आंसर क्या लिखा है आप लोगों ने? Between left heart chamber. What is the answer for the mitral valve that you have written down? Exact location. Two cusps Two or flaps triangle cusps located at the aperture between the left between left auricle auricle and and the left left ventricle. Okay, two flaps or a cusp present at the aperture between the left auricle and left ventricle. Yes, two flaps or cusp, ये लिखना जरूरी है. Yes, ये लिखना जरूरी है. Two flaps or a cusp present at the aperture between the left auricle and left ventricle. Very, very important. चलो, next is aortic semilunar valve का main function. What is the function that you have written down? prevents Prevents backflow backflow of from oxygenated outside blood to from the aorta back to the left ventricle. 1 minute. साक्षी, यश, अब आप आंसर नहीं दोगे. कुणाल, आपने क्या लिखा है एओर्टिक सेमिलर वाल्व का आंसर? मिस नहीं लिखा है. क्यों?
पवन, पवन अय्यर, पवन धाबी, आंसर मी. आरुषि, संस्कार, Yes, ma'am. 2 minutes. रश्मि, Russell. Miss. Are you Prevents going back. to give me the answer in today's date? Sorry, ma'am. आज के दिन पे मुझे आंसर मिलेगा. Miss. Prevents back of blood from left ventricle to the aorta. No. Ori papri. No. That is wrong. Aortic seminal valve. मैम मैं बताऊं हाँ संस्कार बोलो. The iPad कौन है? ureter- iPad कौन है? मिस कर रही हूँ नाम चेंज. हाँ नाम चेंज करो प्लीज. हाँ संस्कार बोलो. the ureter arises from the notch hilum in median Eh? surface and क्या बोल रहे हैं? एओटिक सेमिनल वाल्व का फंक्शन बताना है. It prevents the backflow of oxygenated blood to the left ventricle. It prevents the backflow of oxygenated blood from aorta to the left ventricle. रश्मि, हाँ जिबड़ी निकली. From aorta to the left ventricle. संस्कार तू सर्कुलेटरी में एक्सक्रीटरी किधर घुसा रहा है? ओए, अरे ये भी जिबड़ी. Aortic seminal valve. It prevents the backflow of oxygenated blood from aorta to the left ventricle. Simple. Lymph का क्या function लिखा है? It supplies It nutrition and distributes oxygen to those oxygen to parts the where tissue. blood cannot reach. Yes, it supplies nutrients and oxygen, respiratory gases to those part of the tissues where blood cannot reach. Okay. Left ventricle has a thick muscular wall than the other walls of the heart. Why? ventricle have to pump Left blood ventricle. Sanskar answer. ventricle have to pump blood to long distances, that is right ventricle pumps blood to the lungs for oxygenation and left ventricle pumps blood to farthest parts the body is संस्कार आंसर की एज इट इज मत बोल. तूने क्या लिखा है वो बोल. मैम मैंने वो लिखा हुआ है मैम पेपर में. आप राइट वेंट्रिकल के बारे में क्यों लिखोगे? आपको लेफ्ट वेंट्रिकल पूछा है. देखो, लेफ्ट वेंट्रिकल हैज अ थिक मस्कुलर वॉल देन द अदर वॉल्स ऑफ द हार्ट. व्हाई? यू हैव टू बी स्पेसिफिक टू ओनली लेफ्ट वेंट्रिकल. ऐसे तो तू क्या पूरा चारों चेंबर समझाएगा? ओके मैम. एनीवन? Miss, may I? हाँ Miss, may I? यश कम ऑन यश पी. Left ventricle has to pump blood to all organs in the body, that is to the farthest parts of our body, such as toes and up to the brain against gravity. So And blood so has it to has- flow. And so it has thick muscular wall than the other walls of the heart. Miss, I wrote one extra point also. So हाँ, बोलो, blood बोलो. has to flow under great pressure, and thus thick walls are needed to withstand Yes, it. परफेक्ट है. सिर्फ लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में डालना है. आप पूरा क्या चेंबर बताने जाओगे? नो, दैट इज रॉन्ग संस्कार. यू जस्ट हैव टू मेंशन ओनली अबाउट द लेफ्ट वेंट्रिकल. ओके, ओके मैम. चलो डिफरेंशिएट बिटवीन पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन. एनी वन पॉइंट? Circulation is between heart आप and लोग परमिशन नहीं मांगते क्या? मिस मे आई करके डायरेक्टली बोलना चालू कर देते हो. हाँ यस साक्षी. in pulmonary circulation, circulation is between the heart and the lungs, and in systemic circulation, the circulation is between the heart and the entire body. यस, ये भी लिख सकते हो. एनीवन विथ एनी अदर डिफरेंट पॉइंट? एनीवन विथ एनी अदर डिफरेंट पॉइंट? No, miss. सेम पॉइंट लिखा सबने? मैं ये पेपर डिस्कस करूं कि नहीं करूं आप लोग के साथ, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोगों ने ये पेपर नहीं दिया है. एंड माई स्ट्रॉन्ग Yeah, फीलिंग, ma'am. माई गट फीलिंग आर सेइंग द सेम थिंग. हाँ
Many of them have not given this test, I suppose. पवन अय्यर, तूने टेस्ट दिया था? तो तूने क्या आंसर लिखा वो बोल नहीं सकते हो? कुणाल शेट्टी, have you given the test? Yes, miss. तो आंसर दो. क्या पूरा पेपर ब्लैंक रखा था क्या? कीर्तना, रश्मि, आरुषि, आरुषि आपने टेस्ट दिया था? Yes, ma'am. तो आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? मैं एक्स्ट्रा वाला मैं दूं? No, I'm just sitting and observing you all people. आप लोग कर क्या रहे हो? Are you really wasting my time, my valuable time, and that too today? What are you doing? आपने पेपर लिखा, आपने कुछ तो लिखा होगा ना आंसर. तो जो भी लिखा है वो बताओ ना मुझे, ताकि मैं उसको रेक्टिफाई करूं. It's a paper discussion. It is not a paper answer. That's it. कि मैं आंसर दे दूं. It's a discussion. You need to discuss with me. कि मिस मैंने इसके बदले ये लिखा है, चलेगा क्या? मिस मैंने इसके बदले ये पॉइंट लिखा है, चलेगा क्या? आप ऐसे पूछो ना. पल्मनरी और सिस्टमिक सर्कुलेशन के बीच का डिफरेंस में सबने यही पॉइंट लिखा है क्या, या कोई दूसरा पॉइंट भी लिखा है? Miss, हाँ यश. I have written pertains to lungs, and for systemic I have written pertains to major circulation in the body. And second point I have written starts in the pulmonary artery arising from the right ventricle and starts in the aorta arising from the left ventricle. परफेक्ट है, परफेक्ट है. डायस्टोल एंड सिस्टोल, यश. डायस्टोल एंड सिस्टोल, यश पी. Diastole, phase of circulation where walls of heart relax or expand and fill blood in the chambers. Systole, phase of circulation where walls of heart contract and pump blood. Very good. It is a phase of the cardiac cycle where the chambers are expanded in diastole, where the chambers are expanded by filling up the blood inside the chamber. And systole, it is a phase of the cardiac cycle wherein the chambers are contracted and pumping the blood with a great pressure. Good, very good. Artery and vein, Yash P. Miss, can I? देना है तुमको आंसर? मुझे तो लगा Yes, था कि मैं miss. तो खाली पेपर डिस्कशन यश के साथ ही कर रही हूँ. Miss, can I say? Yes, of course. Artery takes blood away from the blood towards an organ. Vein takes blood away from the organ towards the heart. Second point, artery carries oxygenated blood except pulmonary artery. Vein carries deoxygenated blood and carbon dioxide laden except the pulmonary vein. चलेगा. ये दो पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है. यू जस्ट राइट डाउन वन पॉइंट विच इज वेरी मच प्रिसाइज एंड जो आपको कॉन्फिडेंट लगता है कि ये मुझे मार्क्स दिला सकता है. ठीक है. आई वुड प्रिफर दैट आप आर्टरी और वेन के बीच में अगर स्ट्रक्चरल डिफरेंस लिखोगे ना तो ज्यादा बेटर होगा. लाइक फॉर एग्जाम्पल artery has a thick muscular wall. Arteries have a thick muscular wall. What? Thick elastic muscular wall, and they are without any valves. Veins have thin non-elastic muscular wall and they are with valves. Lumen इसमें wider है और इसमें narrow है. तो ये structural difference डालोगे तो ज्यादा better होगा. Okay? चलो. Okay, ma'am. Diagram based Miss. question. हाँ बच्चा. I have written about structure and position. Is it okay? Yeah. Superficial and deeply seated ना, वो भी चलेगा. Okay. First we will label all these parts और उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं. पहले सबका लेबलिंग ही बता दो. 1 क्या है? सुपीरियर वेना कावा. Yes. 2 क्या है? Inferior. Aorta. 2. Aorta. Aorta. Very good. 3. हार्ट से लंग्स में जा रहा है. 3. पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी. 4. पल्मोनरी वेन. पल्मोनरी वेन. 5. Hepatic artery. हेपेटिक Exactly. आर्टरी. Hepatic artery. Very good. 6.
Hepatic portal vein. Hepatic portal vein. Very good. And 7? Hepatic vein. 7 is hepatic vein. And 8 is Inferior vena cava. inferior vena cava. Correct. Inferior vena cava. Yes. Inferior vena cava. Correct. Name the blood vessel 1 and 2. अभी हमने तो यहाँ पे लेबल कर ही दिया है तो हमें पता है it is superior vena cava and 2 is aorta. State the function of blood vessel 5 and 6. 5 का क्या function होगा? Hepatic artery. It Ma'am, carries oxygenated Yes, blood to the Yash liver. Agarwal. supply blood from aorta to the liver. Yes, but which type of blood? Oxygenated. Oxygenate. Oxygenated blood. Very good. And 6 का क्या function होगा आरुषि? It carries nutrient-laden blood from the gastrointestinal tract to the liver. ये मैंने लिखा है. It carries what? It carries nutrient-laden blood from the gastrointestinal tract to the liver. No. मैम बट करेक्ट भी है मुझे. नहीं. Miss, may I? Yes, Yash. Hepatic portal vein carries blood from the small intestine to liver to store the food absorbed by the small intestine. आपको राइट दिया है? हाँ. मैम मेरा भी राइट दिया है. मेरे पास जब पेपर मैं आएगा बोलूं, ना मैम? चेक करने के लिए, याद रखना मैं बहुत गंदा चेकिंग करती हूँ. I will not take all these answers to be like the right one. याद रखना मेरे पास जिस दिन आपके पेपर्स आए ना सबकी हालत टाइट हो जाने वाली है. I am very much precise about the answer. आपको ये लिखना है 6 के लिए. यश अग्रवाल आप आंसर देना चाहते हो? बोलो. Starts from the stomach and intestine and not direct. Starts from the stomach and intestine, not directly send blood to the posterior vena cava. Instead, first enter into the liver as combined hepatic portal vein. No. आपको फंक्शन पूछा है. This is not the function you are telling me. आपको लगता है ये फंक्शन इसमें है. साक्षी बोलो. Right दिया मैम. It carries the food-laden blood from stomach and intestine to the liver. मैम मैंने भी तो वही लिखा है. मालूम है मुझे आरुषि, मैं कहाँ मना कर रही हूँ. सुना ना मैंने तो. दोनों का आंसर सेम ही तो आ रहा है. बट आइडियली मुझे एक भी आंसर सही नहीं लग रहा है. अच्छे नहीं लग रहे. मतलब like accepting वाला satisfaction वाला आंसर नहीं लग रहा है. So the answer is hepatic portal vein carries deoxygenated blood with excess amount of glucose and amino acids to the liver to regulate the concentration of the blood in the body. ये मेरा आंसर है. मैम आप फिर से बोलो. Hepatic portal vein, it carries deoxygenated blood with the excess amount of glucose and amino acids. Hepatic portal vein carries deoxygenated blood with excess amount of glucose and amino acids from small intestine into the liver to regulate the concentration of blood in the body. Don't worry, the session has been recorded, तो आप recording भी Google Classroom में देख सकते हो for the answer. All right. What is the importance of the blood vessel? Label 3. Jaldi jaldi answer do quickly. Pulmonary artery. The heart to the lungs. Yes, it carries deoxygenated blood from heart to the lungs for oxygenation. Which blood vessel will contain high amount of glucose and amino acids? Blood vessel 6. Hepatic portal Blood vein. vessel 6, hepatic portal vein. साक्षी कभी भी डायरेक्टली आंसर नहीं लिखना, आपको नंबरिंग बताना पड़ेगा. यहाँ पे नंबर क्या है उसका, तो you have to write down blood vessel 6. यहाँ पे आपको लिखना है बच्चा blood vessel number 6 called hepatic portal vein. Okay, you have to always write down the answer with respect to the diagram which is given. Okay, draw a neat label diagram of blood cell as seen in the smear. This is how you are supposed to draw. आप एक सर्कल ड्रॉ करोगे, उसमें प्लाज्मा बनाओगे. प्लाज्मा डॉटेड दिखा दो, फ्लैट प्लेटलेट्स दिखा दो, आरबीसीज दिखा दो डोनट शेप के, एंड एक हाथ दो न्यूक्लिएटेड डब्ल्यूबीसीज दिखा दो. दैट्स इट and your work is done. Okay, yes, so I hope everyone has understood from the paper that I have solved today, but this is not the way I will be solving it again.
जब तक मुझे 100% सबका पेपर का अटेंडेंस नहीं मिलता है कि नहीं सबने पेपर ने अटेम्प्ट किया है कि नहीं किया है, मैं तब तक पेपर डिस्कशन करूंगी भी नहीं। सबको पेपर देना है, मतलब देना है। 20 मार्क्स के टेस्ट के लिए आप पीछे क्यों हट रहे हो? ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू आवर टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम एंड सेल डिवीजन। याद है हमने लास्ट जीन तक किया था, सबको याद आ रहा है? हाँ मिस। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऑलराइट, चलो लेट अस सी टुडे नीड फॉर सेल डिवीजन। गाइस हमने स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीट कर दिया था, याद है ना सबको? Yes, miss. You can see the 10th slide. Structure of chromosome complete कर दिया था. So now we have to start with need for cell division. New cells क्यों produce करना रहता है? New cells मतलब क्यों cell को cell division करना है? Why every time the cell is performing cell division? ऐसी क्या जरूरत है? What is the need for it? नए cells क्यों चाहिए? For the growth, proper growth के लिए. Because every organism begins its life as a single cell. यहाँ तक कि हमारा भी लाइफ एक सिंगल सेल से स्टार्ट हुआ है, दैट इज जाइगोट. आई होप यू ऑल नो व्हाट इज जाइगोट. जाइगोट इज अ सेल व्हिच इज फॉर्म्ड फ्रॉम बाय द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग, राइट? तो जब स्पर्म और एग फ्यूज होता है इट फॉर्म्स जाइगोट. ये जाइगोट जो है ये एक सिंगल सेल है. अब ये जो सिंगल सेल है जाइगोट, दिस डिवाइड रिपीटेडली टू प्रोड्यूस क्लस्टर ऑफ सेल्स और यू कैन से मास ऑफ सेल्स. Mass of cells. These mass of cells will form definite tissues, right? Tissues बनाएंगे definite organs. Organs, बहुत सारे organs इकट्ठा होके बनाएंगे organ system. And organ system will then eventually form the body. तो यानी कि body में जो trillions of cells present है, okay, trillion cells जो present है body में, ये cells कहाँ से आए? Of course ये cells इसी सिंगल सेल जाइगोट में से बने. बट हाउ? बाय द रिपीटेड डिविजन. यानी कि जब रिपीटेडली जाइगोट एक सेल डिवाइड करते रहता है, वो बहुत सारे मास बनाते हैं सेल्स का, जो टिश्यूज बनाते हैं, स्पेसिफिक टिश्यूज, ऑर्गन्स बनाते हैं. many organs they work together to form the organ system and that is how our body is formed. तो अगर आप देखोगे तो हमारा इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स बॉडी भी एक सिंगल सेल से ही बना हुआ है, राइट? And that's why in our body there are different system that we are learning it right now in 10th standard, like circulatory system, आपने 9th में respiratory system पढ़ा, excretory system, digestive system, reproductive system, endocrine system, nervous system. ये सब सिस्टम है जहाँ पे एक ऑर्गन नहीं, बहुत सारे ऑर्गन स्पेसिफिक फंक्शन को कैरी आउट करने के लिए एक साथ काम करते हैं. गेटिंग इट? एंड सो टू डिजाइन सच अ ह्यूज बॉडी विद ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, ये ट्रिलियंस ऑफ सेल्स ऐसे ही हवे में से नहीं आए हैं, दे हैव बीन रिपीटेडली डिवाइडेड फ्रॉम द सिंगल सेल एंड तब जाके हमारा बॉडी जो है वो अच्छा खासा डेवलप हुआ है. सो एवरीवन अंडरस्टूड द फर्स्ट पॉइंट कि ग्रोथ के लिए डिविजन करना बहुत ही जरूरी है, राइट? So first point is for growth. Second point is for replacement. I can take a very classic example of RBCs. Every 120 days में हमारे millions of RBCs जो है वो replace हो जाते हैं. Old RBCs are been destroyed in the liver and the new RBCs are been replaced by the bone marrow cells. अब ये bone marrow cells लगातार continuously divide करते रहते हैं and RBCs को replace करते रहते हैं. And this replacement comes under वेयर एंड टेयर मैकेनिज्म, जहां पे सेल्स जो है नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग के लिए पुराने सेल्स को निकाल के उसको नए सेल से रिप्लेस करना बहुत ही जरूरी है, स्पेशली आरबीसीज, बिकॉज आरबीसीज कंटिन्यूसली गैस सप्लाई करता है. नंबर 3, मेन फॉर रिपेयर. अब रिपेयर और रिप्लेसमेंट है ना, दोनों साथ ही साथ काम करते हैं. मतलब साथ ही साथ, यानी कि रिपेयर और रिप्लेसमेंट इज द वर्ड दैट वी यूज इट ऑलवेज टुगेदर. रिपेयर में, रिप्लेसमेंट में क्या हो रहा है? जब हमारा बॉडी नॉर्मल है, हमारे नॉर्मल बॉडी के जो सेल्स है जो ओल्ड होते जा रहे हैं उनको रिप्लेस करना है. लेकिन रिपेयर में क्या हो रहा है? any cells or the tissues which have damage due to injuries, accidental injuries or cut in the skin, deep cut in the skin or fracture of the bones, then these has to be repaired. अब ये रिपेयर कैसे होता है? नए नए सेल्स प्रोड्यूस होते हैं बाय द डिवीजन एंड देन फाइनली दे गेट रिपेयर वेरी इजीली. तो रिपेयर जो है ये तब होता है जब हमारे सेल्स डैमेज होते हैं, बट रिप्लेस हर वक्त होते ही रहते हैं.
Okay, तो मतलब growth, repair and replacement is very nicely seen in a synchronized manner. It is seen in the human body. Human body में एक और बड़ा important process होता है, that is reproduction. Not only in humans, in fact in all living organisms, चाहे अमीबा हो, बैक्टीरिया हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या ह्यूमंस हो, reproduction हर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है. अमीबा एंड बैक्टीरिया, these are lower organisms, alright. और जब लोअर ऑर्गेनिजम्स डिवाइड करते हैं ना, तो वो ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स प्रोड्यूस करते हैं. मतलब अमीबा जब डिवाइड करता है तो वो नए सेल्स जो प्रोड्यूस करता है वो एग्जैक्टली अमीबा जैसे ही रहते हैं. सो दे प्रोड्यूस सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स बिकॉज द प्रोसेस दैट द अमीबा अंडरगोज इज माइटोसिस. यानी कि अमीबा क्या करते हैं, अमीबा परफॉर्म्स माइटोसिस, और माइटोसिस से सिमिलर सेल प्रोड्यूस होते हैं. Whereas in humans, who are higher organisms, humans में special cells are produced, and these special cells you all know it is called as gametes. Am I right? Sperms in male and ovum in female. तो ये जो sperms और ovum जो reproductive organs में produce होते हैं, these are produced by a special kind of division which is called as meiosis. All right, तो यानी कि humans में reproduction has been done by meiosis, whereas in lower organisms में reproduction is done by mitosis. हमारे बॉडी में माइटोसिस ग्रोथ, रिपेयर और रिप्लेसमेंट के लिए होता है, रिप्रोडक्शन के लिए नहीं, क्योंकि हम सिमिलर यंग वंस प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं. हमारे जो यंग वंस है, हमारे जो जनरेशन है, वो काफी डिफरेंट होते हैं पेरेंट्स से, राइट. और उसी डिफरेंस का आंसर हम ढूंढने बैठे हैं इस चैप्टर के अंदर, करेक्ट. जो हम लोग सीखते हैं, मतलब जो इवेंचुअली हम लोग एट द एंड सीख ही लेंगे, पता कर ही लेंगे कि हमारे में डिफरेंस क्यों है. तो डिफरेंस का मतलब है कि माइटोसिस नहीं हो रहा है, इट इज मियोसिस, जहां पे गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. And when these gametes they fuse together, they produce new generation. So sperm is produced in the males and ovum is produced in the female. And both this sperm and egg, they have half the number of chromosomes. What is the meaning of half the number of chromosomes? यानी कि 23 chromosomes. मतलब sperm में होता है 23 and ovum में होता है 23. Now when the sperm and ovum fuse together, वो बनाते हैं 46. यानी कि sperm, okay, sperm with 23 and ovum with 23, when they are fused together it produce zygote, and zygote में 46 नंबर अपना रिस्टोर हो जाता है, बिकॉज ह्यूमन का क्रोमोसोमल नंबर इज 46. देखो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का ना अपना अपना क्रोमोसोमल नंबर है फॉर देयर ओन डेवलपिंग द कैरेक्टरिस्टिक. जैसे ह्यूमन का है 46, राइट. मंकीज या फिर एप्स का है 48, गोरिल्ला का 48, डॉग का 78, वैसा. तो सबका अपना अपना क्रोमोसोमल नंबर है. आवर क्रोमोसोमल नंबर इज 46. तो अगर 46 क्रोमोसोमल नंबर नहीं आया तो क्या हमारा बॉडी डेवलप होगा? क्या हमारे बॉडी के फीचर्स डेवलप होंगे? क्या नहीं होंगे. मतलब बॉडी के फीचर्स डिजाइन करने के लिए, ह्यूमन स्पीशीज का कैरेक्टरिस्टिक्स डिजाइन करने के लिए 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का होना जरूरी है. तो अगर गैमेट्स हाफ द नंबर में प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि स्पर्म 23 एंड ओवम 23, जब ये फ्यूज होते हैं तो 46 नंबर जो है वो रिस्टोर हो जाता है. एंड दैट इज हाउ द ह्यूमन डेवलपमेंट, आई मीन द ह्यूमन के कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डेवलप होते हैं. लेट मी शो यू दैट. ये देखो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी सेल्स, मतलब ह्यूमन के जो नॉर्मल बॉडी सेल्स है, हमारे जो ये बॉडी सेल्स होते हैं, ओके, बॉडी सेल्स हैव 46 क्रोमोसोम्स, दैट इज 23 पेयर्स. यस, दे आर इन अ पेयर, जिसको हम कहते हैं डिप्लॉयड. व्हाट डू वी कॉल? डिप्लॉयड. 2n, मैन में भी एंड वुमेन में भी, मतलब मेल और फीमेल में दोनों में डिप्लॉयड होता है. अब जब मेल और फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि सेक्स सेल्स, ओके, मेल और फीमेल जब गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं यानी कि सेक्स सेल्स, दे मेल प्रोड्यूस स्पर्म्स एंड फीमेल प्रोड्यूस ओवम, करेक्ट. तो स्पर्म में होता है 23 विच इज हैप्लॉइड, एंड ओवम में होता है 23 विच इज ऑल्सो हैप्लॉइड, करेक्ट. अब देखो जब स्पर्म एंड ओवम यहाँ पे फ्यूज हो रहे हैं, it produce zygote which is called fertilized egg. It produce zygote which is called fertilized egg. ध्यान से देखो zygote में 46 नंबर दोबारा से रिस्टोर हो गया. तो ये रिस्टोरेशन के वजह से, 46 नंबर रिस्टोर होने की वजह से नया बेबी जो है वो प्रोड्यूस होता है विद अ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक. एवरीवन क्लियर विद दिस पॉइंट? Yes, ma'am. आरना, Yes, miss. बच्चा क्लियर? Yes, ma'am. ओके. आरुषि, कीर्तना, कुणाल? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Am I going very fast? Anvesha, No. Vrinda? Yes. Okay.
क्लियर ना? Yes. हो गया लिख के? Should I move to the next slide? Yes, Yes, ma'am. miss. Okay. Yes, miss. पानी पी लेती हूँ. And ta-da! We are going to start with cell cycle. Cell लगातार continuously divide करता है. Guys, cell is continuously dividing. One cell produce 2 daughter cell. 2 cell produce 4 daughter cell. 4 cell produce 8 daughter cell. 8 cells produce 16 daughter cells. मतलब लगातार continuously cell divide करते जाते. Continuously the cell is dividing. बट ये कब होता है? हेलो, ये कब होता है? जब डिवीजन की जरूरत होती है या जब नए सेल्स की जरूरत होती है तब होता है. ऐसे ही बिना मतलब के डिवीजन करना सही रहेगा क्या? नहीं. नहीं ना? नहीं. आप तो जानते हो अगर ऐसे ही बिना मतलब के हमारे बॉडी में डिवीजन होगा तो एक्स्ट्रा मास ऑफ सेल्स प्रोड्यूस होगा एंड दिस एक्स्ट्रा मास ऑफ सेल्स इज गोइंग टू कॉज कैंसर. अच्छी बात है ये? नहीं ना? इसलिए हमारे बॉडी में सेल साइकिल का प्रोसेस होता है ताकि जब सेल को जरूरत होती है तब सेल डिवीजन करने के लिए इस प्रोसेस के अंदर आता है. जब सेल को डिवाइड नहीं करना है वो ये प्रोसेस को कंटिन्यू नहीं करेगा. आर यू लिसनिंग टू मी? मैंने 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट Yes, बोला. ma'am. एक कि अगर ma'am. सेल को डिवीजन करना है तो वो ये प्रोसेस डेफिनेटली करेगा, लेकिन अगर सेल को डिवीजन करना ही नहीं है तो फिर वो ये प्रोसेस करेगा ही नहीं. गॉट इट? तो देयर आर 2 मिस, ऑप्शन. हाँ बच्चा. तो कैंसर कैसे होगा? हाँ, तो कैंसर कैसे होगा अगर I'll सेल come to साइकिल that फॉलो point. हो रहा है? I'll come to that point. ओके. I'll come to that point जैसे हम सेल साइकिल कंप्लीट करते हैं, है ना? I'll come to that point. अलग अलग सेल्स में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ. ठीक है, चलो. Now what is सेल साइकिल? सुनो, किसी भी सेल को डिवाइड करने के लिए प्लीज ध्यान से सुनना. किसी भी सेल को डिवाइड करने के लिए उसे कुछ टास्क कंप्लीट करने पड़ते हैं. मतलब किसी भी सेल को अगर डिवाइड करना है, एनी सेल्स ऑफ आवर बॉडी वांट्स टू डिवाइड. अभी देखो हमारे बॉडी के कौन से सेल्स डिवाइड करेंगे बच्चा लोग? स्टेम सेल्स, बोन मैरो सेल्स, स्किन सेल्स, राइट? या मैक्स टू मैक्स सेल्स विच आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द नेल्स. दैट्स इट. नेल्स के बेस में जो सेल्स प्रेजेंट है वही. और तो कोई सेल्स डिवाइड कर ही नहीं सकते ना. आप तो जानते हो ब्रेन सेल्स, नर्व सेल्स, हार्ट सेल्स, किडनी सेल्स, बोन सेल्स, ये सब तो परमानेंट सेल्स है. याद आ रहा है? इंट्रोडक्शन के वक्त बताया था हमारे बॉडी में 2 टाइप के सेल्स होते हैं, परमानेंट सेल्स और डिवाइडिंग सेल्स. किसको किसको याद है? किसको किसको ये पॉइंट याद है? यस मिस. परमानेंट सेल्स एंड डिवाइडिंग सेल्स. Yes, miss. तो परमानेंट Yes, सेल्स हम miss. किसको बोलते हैं? परमानेंट सेल्स आर दो सेल्स व्हिच हैव लॉस्ट द एबिलिटी ऑफ डिवीजन, यानी कि वो कभी डिवीजन करेंगे ही नहीं, राइट? और डिवाइडिंग सेल्स वो होते हैं जो लगातार डिवाइड करके, मतलब एवरी टाइम जब नीडेड होता है, वेन एवर इट इज नीडेड, मैं बोल रही हूँ, वेन एवर इट इज नीडेड दे विल डिवाइड फॉर रिपेयर और रिप्लेसमेंट एंड दे विल गो बैक टू द नॉर्मल स्टेट. तो यानी कि जो डिवाइडिंग सेल्स है उनको अगर डिवीजन करना है ना तो उनको कुछ 3 टास्क कंप्लीट करने पड़ते हैं. पहला, दैट इट मस्ट ग्रो इन अ प्रॉपर साइज. हाँ, अगर ग्रोथ नहीं होगा then the cell will not be able to divide. दूसरा, it has to synthesize certain proteins or RNA which is required for the division. And तीसरा, उसको अपने DNA को duplicate करना है so that it can distribute the DNA molecule equally into 2 daughter cell. अब ये जो तीनों इवेंट्स है, जब ये एक प्रॉपर सीक्वेंस में होता है, सीरीज में होता है, then that is called as cell cycle. So what is cell cycle? Cell cycle is a series of events. Which events? Growth, synthesis of RNA and proteins, and DNA duplication. तो ये जो events है, the series of events that takes place in a cell leading to the duplication of DNA, मतलब DNA double होगा, and subsequent division of the cell to produce 2 daughter cells. यानी कि पहले growth करेगा, फिर DNA duplication करेगा, फिर प्रोटीन और आरएनए सिंथेसाइज करेगा और फिर सेल डिवाइड करके डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करेगा. तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये एक साइकिल फॉर्म में होते रहता है एंड दैट इज कॉल्ड एज सेल साइकिल. एवरीवन क्लियर विद दिस डेफिनेशन?
Yes. Yes, ma'am. भव्य तू क्या कर रहा है? तेरे हाथ में क्या है? Seriously? Clear with this, everyone? Yes, Okay. ma'am. Yes, ma'am. सेल साइकिल को समझने के लिए हमने उसको दो फेजेस में डिवाइड किया. पहला है इंटरफेस, विच इज नॉन डिवाइडिंग फेज, यानी कि सेल यहाँ पे डिवीजन नहीं कर रहा है. हेलो हेलो, सेल यहाँ पे डिवीजन नहीं कर रहा है, लेकिन सेल इज प्रिपेयरिंग इटसेल्फ फॉर द डिवीजन. सेल तैयारी कर रहा है. डिवीजन के पहले जो तैयारी होती है ना, जो प्रिपरेशन होता है, वो दैट इज नॉन डिवाइडिंग फेज, इंटरफेस. एंड दूसरा है डिवाइडिंग फेज, विच इज कॉल्ड एम फेज. व्हाट इट इज कॉल्ड? M phase. It is also called as simply mitosis. याद रखना, meiosis will not participate in cell cycle. It is always mitosis which will participate in the cell cycle. Got it? तो दो फेज में हमने सेल साइकिल को डिवाइड किया हुआ है, इंटरफेस एंड एम फेज. एनी डाउट इन दिस? No, miss. No, ma'am. स्टार्ट. दिखाओ डायग्राम. Yes, All ma'am. right, everyone see this. Everyone see this. Yeah, can everyone see G1 phase? Green color ka? Yes, ma'am. Yes, miss. Yes. Then can everyone see S phase and G2 phase? अब ये तीनों मिला के होता है interphase. Guys, all these three phase are together called interphase, and this is the M phase, that is mitotic phase, जहाँ पे सेल ने डिवाइड करके दो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस की है. सेल ने डिवाइड करके दो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस की है. ऑलराइट, चलो तो लेट अस इमेजिन कि सेल ने डिवाइड किया है. सुनो ना, हम लोग यहां से देखते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं. लेट अस इमेजिन एक सेल ने डिवाइड किया है इनटू टू डॉटर सेल. अब ये दोनों डॉटर सेल्स सेल साइकिल कैसे करेंगे, वी विल सी दैट. हम वहां से स्टार्ट करते तो हमें समझ में आएगा. लेट अस इमेजिन वन ऑफ द सेल हैज गॉट डिवाइडेड एंड प्रोड्यूस टू डॉटर सेल्स. अब ये दोनों डॉटर सेल्स सेल साइकिल कैसे कर रहे हैं ना, वो देखते हैं. स्टार्ट करें. लेट अस अज्यूम दैट द न्यू सेल्स आर प्रोड्यूस. अब ये न्यू सेल्स आगे सेल साइकिल कैसे करते हैं, लेट अस डू दैट. ऑलराइट, फर्स्ट इज इंटरफेस. जो नए सेल्स प्रोड्यूस हुए हैं बाय द डिवीजन, दे आर वेरी स्मॉल इन साइज. अब ये सेल्स इंटरफेज में जाएंगे. कहां पे जाएंगे? इंटरफेज में, वेयर द सेल इज गोइंग टू ग्रो इन अ साइज. ये देखो, इट विल ग्रो, और जैसे ही उसका ग्रोथ होता है, देयर विल बी नो चेंज इन द क्रोमोसोम. पहले एक बात समझ लो, ग्रोथ करते वक्त उनके क्रोमोसोम्स में कोई चेंजेस नहीं होगा. अब जाहिर सी बात है, न्यूली फॉर्म्ड सेल्स है. ये देखो, ये दोनों डॉटर सेल्स न्यूली फॉर्म्ड सेल्स है, तो इनको ग्रोथ तो यहाँ पे करना पड़ेगा ना. बिना ग्रोथ के तो वो कैसे सर्वाइव करेंगे? तो पहले वो ग्रोथ होंगे, अच्छा खासा मैक्सिमम साइज बनाएंगे, साइटोप्लाज्म डेवलप करेंगे, सारे सेल ऑर्गेनल्स डेवलप होंगे. ओके, synthesis of the proteins and RNA will take place. Everything will be developed very nicely in the cells. अब ये सेल्स, ये दोनों डॉटर सेल्स G1 से S में जाएंगे, एंड जैसे ही वो S में आते हैं, वो अपने डीएनए को डुप्लीकेट करेंगे, एंड जैसे ही डीएनए को डुप्लीकेट कर दिया, दे विल एंटर इनटू G2 फेज. एंड G2 फेज के बाद वो इमीडिएटली डिवाइड करेंगे, बिकॉज दे हैव टर्न इनटू मैच्योर सेल. एंड मैच्योर सेल में जैसे ही टर्न हो गए, ईच सेल विल डिवाइड टू प्रोड्यूस टू इंडिविजुअल डॉटर सेल्स. ये देखो, बस यही प्रोसेस मैं आपको समझाना चाह रही हूं. अंडरस्टूड? अभी रब कर देती हूँ, वरना खामों का कंफ्यूज होगे. तो वी आर स्टार्टिंग विथ आवर सेल साइकिल विथ दिस न्यू सेल्स. अब ये जो न्यूली फॉर्म्ड सेल्स है, दे विल एंटर इनटू G1 फेज, जहां पे उनका ग्रोथ होगा. बट याद रखना, ग्रोथ के वक्त क्रोमोसोम्स में कोई चेंजेस नहीं आते. इनफैक्ट पूरे इंटरफेज में G1S और G2 में क्रोमोसोम्स में कोई चेंजेस नहीं आता. We call this interface as resting phase, not because cell आराम फरमा रहा है. It's because cell is not dividing, but it is highly metabolically active. Understood? Cell यहाँ पे division नहीं कर रहा है, so cell is resting from the division.
बट सेल इज क्वाइट एक्टिव इन सिंथेसाइजिंग इट्स ओन मटेरियल। यानी कि सेल यहाँ पे मेटाबॉलिकली बहुत ज्यादा एक्टिव है बट डिविजन नहीं कर रहा है। G1 S और G2 में सेल डिविजन नहीं कर रहा, डिविजन सिर्फ और सिर्फ M फेज में ही होता है। हम इंटरफेज को प्रिपरेटरी फेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिपरेटरी। क्यों? क्योंकि सेल तैयारी कर रहा है फॉर इट्स नेक्स्ट डिविजन, राइट? कि सेल को डिवीजन करना है तो उसके पहले कुछ कुछ चीजें उसको बना के रखनी पड़ेगी ना, तैयार करके रखना पड़ेगा, तभी तो वो डिवीजन कर पाएगा। सो फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग हमने इंटरफेस को 3 फेजेस में डिवाइड किया। G1 phase, first growth phase, G2 S phase, that is synthesis phase, and G2 phase, that is second growth phase. All right? Yes, First ma'am. growth phase, Yes, ma'am. नाम से ही पता चल जाता है ग्रोथ, यानी कि सेल यहाँ पे भरपूर ग्रो कर रहा है। S phase, DNA synthesis, यहाँ पे DNA डबल हो रहा है। G2 है ना, बहुत शॉर्ट फेज है, इट्स अ शॉर्ट फेज, क्योंकि सेल ऑलरेडी यहाँ पे पहुंच चुका है G2 में एंड ऑलरेडी डीएनए डबल करके पहुंचा है, तो सेल यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेगा, सेल इमीडिएटली एम फेज में चला जाएगा। मतलब G2 में सेल थोड़ी देर के लिए रहेगा और फिर इमीडिएटली एम फेज में चला जाएगा, क्योंकि एम फेज में उसको डिवाइड करना है। ऑलराइट, सो शैल वी सी ईच वन ऑफ इट डिटेल में? Yes, ma'am. Yes, miss. Yes, ma'am. Who is Oppo F17 Pro? Oppo F17 Pro कौन है? गुड, अपने आप निकल गया। ओके, चलो लेट अस गाइस, आपको समझ में आ रहा है ना हम लोग क्या कर रहे हैं? Yes, miss. Yes, ma'am. आरुषि, अपूर्वा, Yes, आप ma'am. लोग मुझे ब्लैंक दिखाई दे रहे हो। अपूर्वा, Yes, ma'am. समझ में आ रहा है बच्चा? हाँ, ma'am. ओके, चलो लेट अस सी द फर्स्ट फेज, G1 फेज। डायग्राम आपके सामने, सब अपने टेक्स्ट बुक डायग्राम पे भी देखेंगे, ठीक है? बहुत ही इजी है। इट इज अ फर्स्ट ग्रोथ फेज। आरएनए और प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। ढेर सारा प्रोटीन्स प्रोड्यूस करता है सेल, क्योंकि सेल को प्रोटीन्स की सख्त जरूरत होती है। दीज आर न्यूली फॉर्म्ड सेल्स, राइट? न्यूली फॉर्म्ड सेल्स G1 में एंटर कर रहे हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्यूट लिटिल सेल्स G1 में आ रहे हैं, तो ग्रोथ तो करना ही है, और ग्रोथ के लिए उनको प्रोटीन्स ढेर सारा चाहिए। वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म इज इंक्रीजिंग, यस, साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम डबल हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट डिवाइड्स ऑन देयर ओन, बिकॉज उनके पास उनका खुद का डीएनए, तो दे विल डिवाइड ऑन देयर ओन। ऑलराइट, वो खुद से डिवाइड कर लेंगे, सिंस माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट हैव देयर ओन डीएनए, वो खुद से बहुत सारा डिवाइड करके कॉपीज बना लेंगे। तो ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो G1 फेज में हो रहा है। आई रिपीट, आरएनए एंड प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड, साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम काफी इंक्रीज हो रहा है, एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट डबल हो जा रहा है। मतलब सेल अभी अच्छा खासा ग्रो होके ऑर्गेनल्स डेवलप करके मैच्योर हो गया है। अब सेल की मर्जी, अब सेल के पास 2 ऑप्शन है। सुनो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब सेल के पास 2 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन, सेल आफ्टर द ग्रोथ, यानी कि G1 कंप्लीट हो जाने के बाद सेल साइकिल से बाहर निकल जाएगा, यानी कि G1 से S में नहीं जाएगा। It will stop the DNA synthesis, it will stop the interface, and it will automatically turn into permanent cell. And जो cells permanent होते हैं ना, जो cells permanent होते हैं, they are into G0 state. G0 state का मतलब होता है cell has lost the ability of division and growth, सिर्फ सेल फंक्शन करेगा। ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? आई रिपीट, पहला ऑप्शन सेल के पास ये है कि सेल ग्रो हो चुका है, अच्छी तरीके से मैच्योर हो चुका है, अब वो डिवीजन नहीं करना चाहता है। ऑब्वियसली इट हैज लॉस्ट द एबिलिटी ऑफ डिवीजन, तो वो सेल साइकिल में रह के करेगा क्या, राइट? So since it has lost the ability of division, it will turn into permanent cell, wherein growth will stop, division will stop, and it will carry out only function. Example के तौर पे हार्ट सेल्स ले लो, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल। ओके, ब्रेन सेल्स ले लो। ब्रेन सेल्स और हार्ट सेल्स,
एक बार जब बन जाते हैं ना, एक बार जब वो प्रोड्यूस हो जाते हैं बाय डिवीजन, वो फिर अपने आप से डिवाइड नहीं करते. मतलब once the heart cells and brain cells are produced in our body, they will lose the ability of division. They cannot repair themselves. They will not be replaced also. उसको कोई रिप्लेस भी नहीं कर सकता और उसका कोई रिपेयर भी नहीं हो सकता. They have turned into permanent cell. They are in a G0. ये क्लियर हुआ? ओके. एंड दूसरा ऑप्शन है सेल के पास एस फेज करना. दिस इज बी ऑप्शन. एस फेज में जाना मतलब क्या? डिवीजन की तैयारी करना. सो देयर आर टू ऑप्शन. या तो सेल परमानेंट हो जाएगा बाय लूजिंग द एबिलिटी ऑफ डिवीजन, या फिर सेल आगे डिवाइड करने के लिए एस फेज में जाएगा. गॉट इट? एंड दैट इज व्हाई आई एक्सप्लेन यू इन माय वेरी फर्स्ट Yes, ma'am. कि बॉडी में दो टाइप के सेल्स होते हैं, परमानेंट सेल्स एंड डिवाइडिंग सेल्स. परमानेंट सेल्स आर इन अ G0 स्टेट एंड डिवाइडिंग सेल्स लगातार G1, S और G2 करते रहते हैं. गेटिंग इट? ओके. Yes, ma'am. एस फेज में क्या होता है? एस फेज में है ना डीएनए, मोर डीएनए सिंथेसाइज. यस, मैं इसको हाईलाइट करूंगी, आप भी करोगे. मोर डीएनए सिंथेसाइज, मोर डीएनए सिंथेसाइज, यानी कि डीएनए का डबल हो रहा है. डीएनए डबल हो रहा है. ओके, क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट हो रहे हैं, डीएनए डबल हो रहा है. तो जाहिर सी बात है यहाँ पे न्यूक्लियस का साइज काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा. एंड जैसे ही एस फेज कंप्लीट होता है, सेल एंटर्स इनटू सेकंड ग्रोथ फेज, विच इज अ शॉर्टेस्ट फेज. क्योंकि मैंने कहा था कि सेल यहाँ पे टाइम पास नहीं करेगा, सेल इमीडिएटली फिर एम फेज में चला जाएगा. थोड़े बहुत आरएनए एंड प्रोटीन्स जो उसको डिवीजन के लिए चाहिए वो यहाँ पे सिंथेसाइज करेगा. एंड देन द सेल इज रेडी टू अंडरगो सेल डिवीजन एंड इट विल एंटर इनटू M phase, which is dividing phase. Is that clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, miss. Yes, ma'am. Okay. Now, जो newly formed daughter cells है, they will again enter into interphase, will carry out G1S and G2, will again divide. Again, newly formed cells are newly cells are formed. Again, they will enter into G1S and G2. Again, they will divide. Again, new cells are formed. Again, G1S and G2. Again, they will divide. मतलब ये cyclic process continuously होते जाता है. And that's why it is called cell cycle. मतलब जितनी बार सेल डिवाइड करना चाहता है वो उतनी बार G1S और G2, G1S और G2M, G1S और G2M, G1S और G2M कंटिन्यूसली करते ही जाएगा जब तक उसको ढेर सारा मास ऑफ सेल्स प्रोड्यूस नहीं करना है तब तक. अब जैसे उसे प्रोड्यूस कर लिया, वो सेल साइकिल स्टॉप करके आराम करेगा, मतलब नॉर्मल हो जाएगा. गेटिंग इट? मिस, हाँ बच्चा. वन कंप्लीट सेल साइकिल का टाइम कितना लगता है? वेरी गुड क्वेश्चन. ह्यूमन बॉडी में एक पूरे सेल साइकिल को 24 आवर्स लगता है, जिसमें एम फेज जो है ना यश, एम फेज इज ओनली फॉर 1 आवर. यानी कि इंटरफेस, तो इंटरफेस कितने घंटे का हुआ? 23 आवर्स. एग्जैक्टली. इंटरफेस जो है वो 23 आवर्स के लिए. एंड एम फेज इज ओनली फॉर 1 आवर. मतलब इमेजिन करो एम फेज कितना फास्ट होता है. भव्या, you're yawning Yes, like a ma'am. hell. Okay, chalo. Everyone understood cell cycle. Very Yes, ma'am. important question. Draw Yes, ma'am. a neat label diagram of cell cycle, and this comes for 3 marks. टेक्स्ट का डायग्राम मार्क करो एज इट इज, सेम टू सेम सबको ड्रॉ करना है. दिस इज दी होमवर्क फॉर यू ऑल. होमवर्क तो मतलब यही है कि आपको पूरा नोट्स कंप्लीट करना है. टेक्स्ट बुक का डायग्राम कंपल्सरी, यू हैव टू ड्रॉ इट. चलो, लेट अस सी द फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए. चलो, ड्यूरिंग एस फेज मैंने क्या कहा था, क्या सिंथेसाइज होता है एस फेज में? एस फेज में क्या सिंथेसाइज होता है? DNA, more DNA. DNA. Molecule has been duplicated. Exactly. So each DNA molecule duplicates, each DNA, one DNA molecule duplicates
for their equal distribution into two daughter cells during mitosis. यानी कि एक डीएनए मॉलिक्यूल दो कॉपीज बनाता है ताकि वो दो डॉटर सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सके इक्वली ड्यूरिंग mitosis. See this. This is one parental DNA. One parental DNA is forming new DNA. Okay, it is forming two copies. It is forming two copies. ध्यान से देखो कैसे होता है. जो पैरेंटल डीएनए है, ब्लू कलर के रिबन जो मैंने दिखाया है, द टू ब्लू रिबन्स, द पैरेंटल डीएनए डबल हेलिक्स विल ओपन अप. इट विल ओपन एट वन एंड. मतलब दोनों डबल हेलिक्स स्ट्रैंड जो है, दोनों स्ट्रैंड जो है डबल हेलिक्स का, वो ओपन हो जाएगा एट वन एंड एंड मेकिंग द टू स्ट्रैंड्स फ्री फ्रॉम ईच अदर. यानी कि ब्लू स्ट्रैंड्स दोनों आपस में अलग हो जाएंगे. दोनों ब्लू स्ट्रैंड्स आपस में अलग हो जाएंगे. अब जैसे ही वो सेपरेट होते हैं, न्यू स्ट्रैंड इज बिगिन टू फॉर्म कॉम्प्लीमेंट्री टू द ओल्ड स्ट्रैंड. यानी कि ये जो येलो स्ट्रैंड है ना, ये नए स्ट्रैंड्स है जो ब्लू वाले के साथ एक एक न्यूक्लियोटाइड पेयर अप करके नया स्ट्रैंड बनाता है. एंड दिस इज हाउ द डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस. यानी कि एक डीएनए मॉलिक्यूल से आपको दो डीएनए कॉपीज बन रहे हैं. और ध्यान से देखो तो दोनों डीएनए कॉपी में कोई डिफरेंस नहीं है. दे आर वन एंड द सेम. मतलब उनका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस भी सेम ही रहेगा. बिकॉज बट नेचुरली एक ही डीएनए मॉलिक्यूल को स्प्लिट अप करके दो डीएनए बनाया ना, तो सेम का सेम ही पैटर्न रहेगा. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. डिड यू अंडरस्टैंड ये रेप्लिकेशन कैसे हो रहा है? Yes, ma'am. दो स्टैंड्स हमने कंस्ट्रक्ट किया था क्लासरूम में, वो दो स्टैंड्स को ओपन करना है. ओके, तो दोनों स्टैंड पे जो नाइट्रोजन बेसिस है, अब उसके कॉम्प्लीमेंट्री मतलब उसके ऑपोजिट हम नया नया न्यूक्लियोटाइड ऐड करेंगे जो उसके साथ पेयर अप होते जाएगा. मतलब कि हम नया स्टैंड कंस्ट्रक्ट करेंगे उसके ऑपोजिट. दोनों ओल्ड स्टैंड का मतलब ये देखो, ये जो ब्लू है बोथ दीज आर ओल्ड स्टैंड. तो दोनों ओल्ड स्टैंड के ऑपोजिट देखो नया स्टैंड प्रोड्यूस हो रहा है. दिख रहा है आपको येलो कलर का? तो मतलब ये Yes, न्यू ma'am. स्टैंड भी कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? न्यू स्टैंड भी न्यूक्लियोटाइड ऐड करते से ही प्रोड्यूस हो रहा है. एक एक न्यूक्लियोटाइड जब आप ऐड करते जाओगे तो वो पेयर अप होते जाएगा एंड वो नया स्ट्रैंड कंस्ट्रक्ट करते जाएगा. सो एट द एंड यू विल सी दैट द एंटायर पैरेंटल डीएनए हैज फॉर्म्ड द टू डीएनए मॉलिक्यूल्स. तो एक डीएनए मॉलिक्यूल जाएगा एक डॉटर सेल में, in one daughter cell and दूसरा डीएनए जाएगा in another daughter cell. Simple. मतलब देखो दोनों डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वल है. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, miss. कैन सेल साइकिल गो एंडलेसली? अच्छा हाँ, No, miss. अभी सुनो, ये जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम के बेस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ये ड्रॉ नहीं आता बट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं. ओके, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. लाइक फॉर एग्जांपल, I'm just drawing the rough diagram. ओके, ये 3 डायग्राम्स दिए हैं. सपोज एग्जाम में ये 3 डायग्राम्स दिए हैं और इसको लेबल किया है ए, बी एंड सी. और अब आपसे पूछेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, अरेंज दी arrange these diagrams according to the process of replication. तो आप कैसे अरेंज करोगे? पहले क्या आएगा? DSC. पहले बी आएगा, फिर ए आएगा एंड फिर सी आएगा. एग्जैक्टली. बी इज रिप्रेजेंटिंग पैरेंटल डीएनए, ए इज रिप्रेजेंटिंग पैरेंटल डीएनए सेपरेट होके दो डीएनए कॉपीज बना रहा है एंड सी में दो डीएनए कॉपीज ऑलरेडी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं. दूसरा क्वेश्चन वो पूछेंगे, नेम द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ डीएनए. व्हाट इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ डीएनए कॉल्ड? Nucleotide. Very good. तीसरा क्वेश्चन, each nucleotide is made up of which 3 components? Each nucleotide is made up of which 3 components? Each pentose sugar, Base. Nitrogen base. pentose sugar, nitrogen base and phosphate. phosphate, And phosphate. Very good. फिर वो आपसे पूछेंगे, name the 4 nitrogen bases present in the DNA.
Name the 4 nitrogen bases present in the DNA. Guanine, thymine, Guanine, adenine, adenine, thymine and cytosine. 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 Very good, very good. बस ऐसे ही वो क्वेश्चन पूछेंगे, समझ में आया? Any 5 questions that they will ask based on this diagram. Okay? Okay, ma'am. चलो. Can the cell cycle go endlessly? ये क्वेश्चन हमेशा दिमाग में आता है. Now see, the answer is yes, the answer is no also. Yes, yes का मैं बाद में बताती हूँ, but no, it cannot go endlessly because कभी ना कभी सेल साइकिल स्टॉप होता है परमानेंटली. सो दो ऑप्शन, मतलब देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज. या तो सेल साइकिल परमानेंटली स्टॉप हो जाएगा या फिर वो स्टॉप होगा टेम्पररली. ओके, तो परमानेंटली स्टॉप होगा तो यानी कि वो परमानेंट सेल्स बन जाएंगे, एंड टेम्पररली स्टॉप हो रहा है मतलब कि whenever the new cells are needed तब ये सेल्स डिवाइड करेंगे. सो एग्जांपल डिस्कस करते हैं. द वेरी फर्स्ट एग्जांपल दैट आई एम टेकिंग इज ब्रेन एंड लिवर सेल्स. ब्रेन एंड लिवर सेल्स आर वंस फॉर्म्ड इन द एम्ब्रियो, मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज पे जब एक बार बन जाते हैं, दे डू नॉट डिवाइड फर्दर. ओके, एंड नीदर दे आर रिप्लेस्ड वंस दे आर डेड. यानी कि ब्रेन और लिवर सेल्स हमारे कभी भी डिवाइड नहीं करते. लिवर सेल्स कभी कभार डिवाइड कर लेते हैं, दैट इज वंस एवरी 1 or 2 years में, टू रिप्लेस अ डैमेज और डिस्ट्रॉयड सेल्स. बट ये भी बहुत रेयर होता है, ऐसा नहीं कि हर बार होता है, ये बहुत रेयर होता है. ओके, surface skin cells. Yes, surface skin cells are continuously lost and replaced by underlying skin by the process called mitosis. तो ये temporarily cells है, मतलब जो बार बार डिवाइड होते रहते हैं. परमानेंट सेल्स नहीं है, परमानेंट होते तो वो डिवाइड ही नहीं हो पाते, टेम्पररी सेल्स है. Another example in plants. In plants, मेरिस्टेम सेल which are present at the growing point, यानी कि शूट टिप पे या फिर रूट के टिप पे जो ग्रोइंग पॉइंट पे जो मेरिस्टेम सेल्स है, दे डिवाइड वेरी रैपिडली एंड प्रोड्यूस न्यू लीव्स, बड्स एंड फ्लावर्स. We do have special germinal cells which are present in our reproductive organ, that is testes and ovaries in animals and ovary and anther in plants. And what do they produce? They produce sex cells which are also called as gametes. तो बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म में दो ही तरीके के डिविजन हमको देखने मिलता है, दैट इज वन इज माइटोसिस एंड वन इज मियोसिस. करेक्ट. लिवर सेल्स जो डिवाइड हो रहे हैं, दैट इज बाय माइटोसिस. सरफेस स्किन सेल्स जो डिवाइड हो रहे हैं, दैट इज आल्सो बाय माइटोसिस. मेरिस्टेम सेल्स डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज आल्सो बाय माइटोसिस. बट गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस. एंड दे मे आस्क यू द लोकेशन आल्सो और एग्जांपल आल्सो. तो प्लीज एग्जांपल्स को अंडरलाइन कर देना, मैंने जो भी हाईलाइट किया उन सबको हाईलाइट कर देना टेक्स्ट बुक में. They may ask you that sperms are produced in which organs of the animals. So testes in males and ovaries in females. All right. Plants में ovary in female and anther in male. Got it? Yes, ma'am. Done? Yes, ma'am. Yes, miss. Yash? कभी कभी ना there is uncontrolled non-stop cell cycle. आपने पूछा था ना. So many a times in our body, in human body, we have seen uncontrolled non-stop cell cycle, which leads to a mass of cells that forms tumor. Now these tumors, they may be or may not be cancerous. 95% तो tumors सारे cancerous ही होते हैं. और ये जो extra mass of cells produce किए जाते हैं, that is because of the unstoppable cell cycle. मतलब एक बार जब सेल्स डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं तो वो कंटिन्यूसली सेल साइकिल करके डिवाइड करते ही रहते हैं, दे डू नॉट स्टॉप. एंड दैट्स व्हाई देयर आर एक्स्ट्रा मास ऑफ सेल्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी, जो हमारा बॉडी एकोमोडेट नहीं कर पाता है. मतलब बॉडी जो है वो तुरंत रिएक्ट करता है एंड बॉडी सीधा उसको ये
इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, यानी कि उसको हटाने की कोशिश करते हैं, बट देन इट इज नॉट पॉसिबल. दीज आर आवर ओन सेल्स, तो वो स्प्रेड होना चालू हो जाते हैं. एंड व्हेन दे स्टार्ट स्प्रेडिंग, दे स्टार्ट डैमेजिंग द अदर ऑर्गन्स का फंक्शन, एंड दैट इज हाउ इट लीड्स टू कैंसर. तो ये जो सेल साइकिल प्रोसेस आपने लर्न किया है, यस ऑफ कोर्स इट इज अ वेरी गुड प्रोसेस, क्योंकि ये हर बार रिपेयर और रिप्लेसमेंट के लिए काम आता है. बट अगर अनकंट्रोलेबल, अनकंट्रोल नॉन स्टॉप हो गया ना, तो यही प्रोसेस हमें कैंसर भी कॉज कर सकता है. गॉट इट? यस मिस. ओके. मिस हाँ मिस जैसे बोलते हैं कि मतलब कैंसर का नाम है जैसे बोन कैंसर वगैरह, तो उसका मतलब कि वहां पर अनकंट्रोल हाँ, प्रोडक्शन हो रहा है. राइट भाविया, यस यस. लंग्स में कैंसर हो रहा है, तो मतलब लंग्स में अनकंट्रोलेबल नॉन स्टॉप सेल साइकिल हो रहा है. एग्जैक्टली. बोन में हो रहा है तो बोन, तो इससे क्या हो जाता है, वो ऑर्गन तो डैमेज हो ही रहा है, और उसके साथ साथ दूसरे को भी तो तकलीफ होगी ना, दूसरे ऑर्गन्स को, बिकॉज इन आवर बॉडी एवरी ऑर्गन्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर, है ना भव्या? Yes, ma'am. ब्लड कैंसर बोलते तो ब्लड में सारे सेल्स दरादर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है. दैट्स बिकॉज बोन मैरो में से कंटिन्यूसली नए सेल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं. Okay. एवरीवन क्लियर विद दिस? आपने सारे एग्जांपल्स हाईलाइट किए, पहले मुझे बताओ. Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस मिस. ओके चलो लेट्स सी. अभी देखो, हमने G1 S और G2 तो कर लिया. G1 S और G2 सबको समझ में आ गया? वेरी Yes, ma'am. इजी इट वाज. अब हम लोग करेंगे M phase, that is cell division phase. There are two types of division, mitosis and meiosis. Mitosis is a division which leads to the production of diploid cell for the growth and development, and meiosis is a division which leads to the production of haploid cell, that is for the gamete formation, sperm and egg in the female, in the humans. Okay, so but the mitosis is the division which leads to the diploid cell, and meiosis is the division which leads to the haploid cell. We are going to start with mitosis. माइटोसिस को हम कहते हैं इक्वल डिवीजन. व्हाई इक्वल? बिकॉज यहां पर एक पैरेंट सेल डिवाइड करके दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनाता है. यस, इट इज प्रोड्यूसिंग टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स. सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज मेंटेन्ड एट ईच सेल डिवीजन. सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, मतलब सपोज अगर एक सेल के पास 20 क्रोमोसोम्स है, तो डिवीजन के बाद डॉटर सेल्स के अंदर कितना होगा? 20. डॉटर सेल्स के अंदर भी ईच डॉटर सेल्स विल हैव 20 and 20. व्हाई? बिकॉज ये जो मदर सेल है, ये G1 S और G2 करके आया है ना. हेलो, Yes, यस ma'am. मिस. है ना? सपोज अगर कोई सेल साइकिल में एंटर कर रहा है, ओके, ये सेल साइकिल है. मान लो एक सेल है जिसके पास 20 क्रोमोसोम्स है. ओके, इट इज एंटरिंग इनटू द G1. तो G1 में उसका डीएनए कितना होगा? 20. S में उसका डीएनए कितना होगा? 40. यश, मैं 40 को 20 + 20 लिख सकती हूँ क्या? चलेगा ना? यस मिस. हाँ. G2 में कितना होगा? 20 + 20. 20 + 20 दैट इज 40. अब G2 के बाद जब वो M में जाता है, it is producing two daughter cells, each with 20 and 20. बरोबर ना? yes or no? यस मिस. तो ये कैसे Yes, पॉसिबल है? क्रोमोसोमल नंबर मेंटेन करना हर एक सेल डिवीजन में कैसे पॉसिबल है? क्योंकि एस फेज में डीएनए डबल हो रहा है, इसीलिए पॉसिबल है. You got that? Why the same number of chromosome is maintained in the mitosis? Because cell is doubling its DNA during S phase, and that is why, because of the doubling of DNA, because the DNA is duplicating, it is equally distributed into two daughter cells, and that's why the same number of chromosomes are maintained. Clear? Yes, ma'am. यस मिस. पॉइंट समझो तब जाके माइटोसिस समझेगा, वरना बाउंसिंग हो जाएगा. एवरीवन अंडरस्टूड? ओके चलो.
Now, definitions are very important. Please mark it in your textbook. Okay. Now, mitosis is completed into two steps: karyokinesis and cytokinesis. Karyokinesis का मतलब होता है न्यूक्लियर डिवीजन एंड साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन. बहुत ही सिंपल है. कैरियो वर्ड का मतलब होता है न्यूक्लियर एंड साइटो वर्ड का मतलब होता है साइटोप्लाज्म. अब न्यूक्लियर डिवीजन जो है वो 4 स्टेप्स में होते हैं: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज. एक बहुत ही सिंपल वे में याद रखने का तरीका है, PMAT, PMAT. सीक्वेंस में याद रखने का सबसे शॉर्टकट, बढ़िया सा शॉर्टकट यही है, PMAT: प्रो, मेटा, एना एंड टीलो. ओके. अब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये 4 स्टेप्स में न्यूक्लियर मटेरियल का डिवीजन हो रहा है, यानी कि क्रोमोसोम्स का सेपरेशन हो रहा है, क्रोमोसोम्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है. एंड जैसे ही टीलोफेज कंप्लीट होता है, न्यूक्लियर डिवीजन जैसे ही कंप्लीट होता है, सेल फिर इमीडिएटली साइटोकाइनेसिस करता है. मतलब आप ये मत समझना कि कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस के बीच में गैप है, नहीं, इट इज अ कंटिन्यूअस डिवीजन. बस सिर्फ इतना पॉइंट, मतलब इतना ही है कि न्यूक्लियर डिवीजन इज टेकिंग प्लेस इन अ 4 स्टेप्स: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज. एंड साइटोप्लाज्मिक डिवीजन इज टेकिंग प्लेस इन अ साइटोकाइनेसिस. तो टीलोफेज के बाद इमीडिएटली साइटोकाइनेसिस आ जाता है. गेटिंग इट? Yes, miss. Okay. भव्या, वीडियो ऑन करो. ये सही है. घर पे किसी से भी बातें करने हैं तो वीडियो ऑफ करके बातें किया करो, लेक्चर में ध्यान मत दो. सुपर. चलो एवरीवन, यहां तक सबको क्लियर हो गया है? हाँ मिस. Yes, miss. ओके. डू यू वांट टू टेक डाउन एनी पॉइंट्स? प्लीज बता दो तो मैं वो स्लाइड पे जाऊं. Miss, हाँ. बाइनरी फिशन भी ऐसा ही होता है. बाइनरी फिजन इज अ डायरेक्ट डिवीजन. यश, माइटोसिस नहीं होता उसमें, डायरेक्ट डिवीजन होता है. बिकॉज बैक्टीरिया डजंट हैव न्यूक्लियस ना. जिसको न्यूक्लियस होता है, प्रॉपर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, दे परफॉर्म माइटोसिस. बैक्टीरिया डज नॉट हैव न्यूक्लियस, सो दे विल परफॉर्म बाइनरी फिशन, जहां पे डीएनए डायरेक्टली स्प्लिट अप हो जाता है. डू नॉट नोटिस. हाँ, डीएनए Okay. डुप्लीकेट जरूर होता है. यश, डीएनए डुप्लीकेट जरूर होता है. और इसीलिए बैक्टीरिया जो है वो ये G1S और G2 ये सब फॉलो नहीं करते. मतलब उनमें ये फेजेस दिखाई नहीं देता है, बिकॉज बैक्टीरिया में डिविजन बहुत फास्ट हो जाता है. 1.5 मिनट में उसका डिवीजन हो जाता है. उसका लाइफ Okay. साइकिल ही उतना है, उसका लाइफ स्पैन ही उतना है, 1.5 मिनट. 1.5 मिनट में बैक्टीरिया जिंदा रहेगा और फिर इमीडिएटली स्प्लिट अप होकर 2 डॉटर सेल बना देगा. ओके. चलो, रेडी विद द माइटोसिस. टेक्स्ट बुक के डायग्राम ओपन करो जल्दी, माइटोसिस का, जहां पे एनिमल और प्लांट्स का डायग्राम दिया है, ओपन करो. ऑलराइट, गुड. ओपन किया? चलो. हाँ मैम. माइटोसिस, प्रोफेज. प्रो का मतलब होता है फर्स्ट, पहला फेज. एंड प्रोफेज जो है माइटोसिस का, इट इज लॉन्गर फेज. ओके. लॉन्गर एंड स्लो फेज, मतलब काफी स्लो और लॉन्गर फेज है ये.
और इसलिए इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, अर्ली प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज। समझ रहे हो? यानी कि प्रोफेज इज टेकिंग प्लेस इन अ 2 स्टेप्स, अर्ली प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज में क्या हो रहा है? क्रोमोसोम्स विल बिकम थिक एंड शॉर्ट एंड क्लियरली विजिबल इन द न्यूक्लियस। क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन होगा, क्रोमैटिन नेटवर्क का कंडेंसेशन होगा। डोंट आस्क मी हाउ। हमने पढ़ा, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में पढ़ा था, याद है? क्रोमैटिन नेटवर्क को कैसे कंडेंस करके क्रोमोसोम बनाया था। डीएनए को पहले हिस्टोन पे रैप किया, हिस्टोन्स को रैप करने के बाद न्यूक्लियोसोम बनाया, न्यूक्लियोसोम्स को कॉइल किया, सुपर कॉइल किया, लूप बनाया, लूप को कंडेंस किया, तब जाके क्रोमोसोम बना। तो वो जो पूरा प्रोसेस आपने देखा ना, दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस इन अर्ली प्रोफेज। अब समझ में आया? यस। तो बेसिकली यहाँ पे क्रोमोसोम्स आर गोइंग टू बी वेरी क्लियर एंड विजिबल इनसाइड द न्यूक्लियस एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दे विल बी काउंटेबल, यानी कि आप काउंट कर सकते हो इनसाइड द न्यूक्लियस। एंड ईच क्रोमोसोम्स इज हैविंग 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स। कितने? 2 सिस्टर, 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स। अब ये सिस्टर क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज एक क्रोमैटिड दूसरे का डुप्लीकेट कॉपी है। One chromatid is the copy of duplicate copy of another one. Like say for example, before S phase, यानी कि S phase के पहले क्रोमोसोम के पास एक ही क्रोमैटिड है, 1 क्रोमैटिड। कितना क्रोमैटिड है क्रोमोसोम के पास? 1। लेकिन आफ्टर S phase उसी सेंट्रोमियर पे क्रोमोसोम्स के पास 2 क्रोमैटिड आ जाता है। दिस इज आफ्टर एस फेज। अब ये कैसे हुआ? क्योंकि एस फेज में डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। तो डीएनए का जब डुप्लीकेशन होता है तो 2 क्रोमैटिड आ जाता है, डुप्लीकेटेड क्रोमैटिड एक ही सेंट्रोमियर पे आ जाता है। सो नाउ देयर आर 2 क्रोमैटिड्स व्हिच आर प्रेजेंट इन 1 क्रोमोसोम एंड दीस 2 क्रोमैटिड्स आर कॉल्ड एज सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये क्लियर हुआ? यस मिस। पहले एक क्रोमैटिड था, Yes, miss. अब जब एस फेज किया, रेप्लिकेशन किया, तो उसी क्रोमैटिड का डुप्लीकेट कॉपी सेंट्रोमियर पे आके अटैच होगा। Okay, now both these sister chromatids are attached to what? Both these sister chromatids are attached to small region which is called centromere. Check it out in your diagram. Centromere. Now animal cells में, guys, this is very important. Animal cells में centrosome is present and सिर्फ animal cells में, plant में centrosome is absent. Animal cells में centrosome will split up into 2 along with the simultaneous duplication of centrioles. यानी कि centrosome split up होगा and उसमें centrioles का duplication होगा. Getting it? Centrosomes will split up and each centrosome में 2-2 centrioles होंगे. Each centrosome में 2-2 centrioles होंगे. बताती हूँ. Animation देखो. Yes, can you see this? Chromosomes condense हो गया, thick and short हो गया, and both the sister chromatids are attached to a common centromere, जो मैंने मेरे यहाँ पे animation में green color का दिखाया है. Yes, and now can you see the 2 centrosomes which are splitting up? And देखो हर एक centrosome में 2-2 centrioles है. 2 centrioles in each centrosome is present. Getting it? याद रखना, मैं माइटोसिस एनिमल सेल्स का बता रही हूं, आपको बाजू में प्लांट सेल्स का भी दिया है जिसके साथ आपको कंपेयर करना है. ओके, एवरीवन इज क्लियर विद द फर्स्ट फेज? अर्ली प्रोफेज में क्या क्या चीजें हो रही है? क्रोमोसोम कंडेंस हो रहा है एंड इट इज बिकमिंग थिक एंड शॉर्ट. ईच क्रोमोसोम इज हैविंग 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स अटैच्ड टू अ सेंट्रोमियर. बरोबर है? सेंट्रोसोम इज स्प्लिटिंग अप विद 2-2 सेंट्रियोल्स ईच इन इट. राइट? ये चीजें हो रही है अर्ली प्रोफेज में. अब लेट प्रोफेज में क्या हो रहा है? लेट प्रोफेज में जो सेंट्रियोल्स है दे विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल, जो कि आपने देखा अर्ली प्रोफेज के एनिमेशन के वक्त मैंने आपको बताया था. सी एनिमेशन में देखो आपको दिखेगा सेंट्रियोल्स ऐसे ऑपोजिट पोल्स की तरफ जा रहे. कैन यू सी दैट? यस, ऐसे स्प्लिट अप होके दूर हो रहे, दे आर गोइंग टू द ऑपोजिट. सो लेट प्रोफेज में centrioles are moving towards the opposite pole and they are occupying the opposite pole.
Now each centriole is surrounded by radiating rays which is called asters. What are they called? Asters. And a number of spindle fibers are produced between daughter centrioles. मतलब दोनों centrioles poles पे पहुंच जाने के बाद बहुत सारे spindle fibers produce करते हैं, and plus वो asters भी produce करते हैं. Okay, so there are two types of fibers which are produced. One is aster and one is spindle fibers. Nuclear membrane and nucleolus disappears during late prophase. Nuclear membrane and nucleolus disappears and all the chromosomes will start moving towards the equator. ये देखिए animation, ये देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो गया, सारा क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में आ गया. एंड कैन यू सी ऑल दीज स्पिंडल फाइबर्स गाइस? जो बीच में आपको फाइबर्स Yes, दिखाई दे रहे, दीज आर स्पिंडल फाइबर्स. और ये मार्जिन पे आपको जो फाइबर्स दिखाई दे रहे ना, ये देखो ये मार्जिन पे, दीज आर कॉल्ड एस्टर्स. दीज आर कॉल्ड एस्टर फाइबर्स. तो अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करके बताऊं, एनिमेशन देख लिया? एनिमेशन देखा? Yes, ma'am. आप देख सकते हो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस भी काफी डिसअपियर हो रहा है एंड सारे के सारे साइटोप्लाज्म सारे के सारे क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में आ चुके हैं, राइट? ओके, ये देखो अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये ऐसा कुछ होगा. यहाँ पे सेंट्रियोल्स है, बरोबर है, ये पोल पे भी सेंट्रियोल्स है, ठीक है. अब सारे यहाँ पे बीच में बहुत सारे स्पिंडल फाइबर्स प्रोड्यूस होंगे. अब ये जो है towards the membrane there are asters which are produced. ये देखो इसको कहते हैं हम लोग asters. Asters like a radiating fibers, asters. Okay, और ये जो बीच में है ना, बीच में जो फाइबर्स प्रोड्यूस होते हैं ना, जो क्रोमोसोम्स को अटैच होता है, these are called spindle fibers. Is that clear? These are called spindle Yes, fibers. ma'am. Yes. अब ये एस्टर्स क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? एस्टर्स इसलिए प्रोड्यूस हो रहा है ताकि वो सेल मेम्ब्रेन को अटैच कर सके, सेंट्रियोल्स को सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच कर सके. क्योंकि अगर सेंट्रियोल्स अपने पोजीशन से हिलाना तो फिर सेल डिवीजन होना मुश्किल हो जाएगा. गाइस अभी भी मैं बोल रही हूँ, एनिमेशन को देखो. सेंट्रियोल्स एक बार पोल्स पे पहुंच गए तो फिर वो एस्टर्स फाइबर्स की मदद से सेल मेम्ब्रेन को अटैच हो जाते हैं ताकि वो अपनी जगह से हिले नहीं. क्योंकि अगर सेंट्रियोल्स अपने पोजीशन से हिल गए ना तो क्रोमोसोम का सेपरेशन प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट. क्लियर? Yes, ma'am. अभी yes, miss. देखो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, अभी मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है that all these duplicated chromosomes are started moving towards the equator. What is equator? Meta. Meta यानी कि middle. Duplicate chromosomes are arranged on the equatorial plane. यानी कि center में आ जाते हैं. All the chromosomes are aligned at the center of the cell. ये देखो बढ़िया. Superb. See this. All the chromosomes, how they are aligning at the center of the cell. And this center of the cell is called equatorial plane or metaphasal plate. And देखो सारे spindle fibers chromosomes को attach हो गए. So each chromosomes is getting attached to the spindle by its centromere. दिख रहा है आपको? Yes, ma'am. Yes, spindle fibers attached to the centromere. right? मिस हाँ बच्चा. वो जो स्पिंडल फाइबर्स है वो ऑर्बिट जैसा एक्ट करता है क्या क्रोमोसोम्स के लिए? ऑर्बिट नहीं 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 नहीं, ये इलास्टिक फाइबर्स है बच्चा. अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा ना तो वो खींचेगा क्रोमैटिड को, दोनों सिस्टर क्रोमैटिड को खींचेगा वो. तो एक क्रोमैटिड जाएगा एक पोल पे, दूसरा क्रोमैटिड जाएगा दूसरे पोल पे, और इस तरह से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है. ओके मिस. Everyone clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I will repeat the mitosis ka phases, that is prophase and metaphase once again in the next class. Okay, and फिर उसके बाद continue करेंगे anaphase, telophase and cytokinesis. For today this much is more than enough. आज आपने बहुत सारे content study किए. You have studied the need for the cell cycle,
सॉरी नीड फॉर द सेल डिविजन, सेल साइकिल का पूरा प्रोसेस स्टडी किया, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए बाय डीएनए रेप्लिकेशन वो भी स्टडी किया है. सो प्लीज गो थ्रू दिस. वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड कर दिया जाएगा गूगल क्लासरूम में. आप वो क्लासरूम में वीडियो देखोगे और नोट्स बनाओगे एंड उसके बाद आगे के लेक्चर में कंटिन्यू करोगे. आई वांट द डायग्राम ऑफ सेल साइकिल इन योर बुक एंड बाकी सारा जो प्रीवियस नोट्स है इस चैप्टर का वो भी सब मुझे चाहिए. गूगल क्लासरूम में एक्टिव रहना. अब सारी चीजें मैं वहीं पर ही कम्युनिकेट करने वाली हूँ. आई एम नॉट गोइंग टू पुट एनीथिंग इन द व्हाट्सएप ग्रुप. जो भी आपको मिलेगा, जो भी मेरा इंफॉर्मेशन होगा या जो भी मुझे मैसेज देना होगा मैं वहां पे दूंगी. ओके, so please be active in the classroom and participate in that. Okay, chalo, bye all, take care, see you.